Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and great. So today we start the chemistry chapter of 1, the solid state of class 12th of NCERT book of part 1st. So students, open your NCERT book and we can study this chapter. So let's start. The vast majority of solid substances like high temperature, superconductivity, biocompatible plastic, silicon chip, etc. are designed to play an even expanding role in future development of science. ओके बच्चों, जो ये वास्ट मेजॉरिटी है सॉलिड सब्सटेंस की, जो हाई टेम्परेचर है, सुपर कंडक्टर है और बायोकम्पेटिबल प्लास्टिक्स है, सिलिकॉन चिप्स हैं एक्सेट्रा, ये हमें डेस्टिनेटेड करती हैं कि एक एक्सपेंडेड रोल करती हैं फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस के, कि हमारा फ्यूचर डेवलप जो डिपेंड है वो इन्हीं के उस पर डिपेंड है. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स देखिए इसके. आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, classify crystalline solids on the basis of the nature of binding forces, define crystallities in unit cell, explain closed packing of particles, describe different types of voids and closed package structures, calculating the packing efficiency of different types of cubic unit cells, correlate the density of a substance with its unit cell properties, describe the imperfections in solids and their effect on properties, correlate the electrical and magnetic properties of solids and their structure. So first of all, today we only study only two topics. We describe the general characteristic of a solid state and distinguish between amorphous and crystalline solids. Students, you know mostly questions coming in board exam and in competition exam like IIT NEET is come from mostly is in NCERT based, and another books also you can preference for your competitions. So first of all you can read line wise the NCERT book. After that you can study the another book. Okay students, so we not waste our time more, so we can start the chapter. So let's start. From our earlier studies we know that liquids and gases are called fluids. Liquid and gases are called fluids because of their ability to flow, because of their ability to, क्योंकि उनकी एबिलिटी क्या फ्लो है. तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर आपको पैसेज के बेस्ड पे भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज कि व्हाट आर फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स को क्या कहेंगे? लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. तो वो कहेगा भाई क्योंकि देयर एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि उनकी एबिलिटी है फ्लो होने के लिए, तो इसलिए हम उन्हें फ्लूइड्स बोलेंगे. द फ्लूइड्स इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट fluidity in both these states is due to the fact that their molecules are free to move about. क्योंकि their molecules क्या है? वो फ्री हैं, वो आपस में पैक्ड नहीं है. क्योंकि पैक्ड किस में होते हैं? पैक्ड होते हैं सॉलिड में. पैक्ड होते हैं सॉलिड में. पैक्ड किस में होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं. और हमारे जो हमारे लिक्विड और गैस में कैसे होते हैं? गैस में सबसे दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, सबसे अलग अलग होंगे गैस में, और लिक्विड में थोड़े पास होंगे, और फिर सॉलिड में बिल्कुल सबसे अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नज़दीक होंगे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, तो वो बिल्कुल सॉलिड सरफेस बन जाएगा. तो इसमें यही कही है कि द
followed in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about, क्योंकि वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए. On the contrary, the consistent particles in solids have fixed position. और जो सॉलिड्स के जो होते हैं वो कंस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. ये तो तुम्हारा 9th का सवाल है. 9th 10th में तुमने पढ़ा भी होगा कि डिफरेंस बिटवीन ए सॉलिड इन अ फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल स्टेट. तुम्हें डिफरेंस बताने हैं कि क्या सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, तो वो आप बता दोगे. अब हमें मेन क्या है, वो ऐसा सवाल भी पूछ सकता है आपसे, आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, क्योंकि वो हमेशा बेसिक से भी पूछ लेगा या फिर हाई थिंकिंग ऑर्डर से पूछ सकता है या फिर बेस से भी पूछ लेगा वो आपसे. हैव अ फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. दिस एक्सप्लेन द रिगिडिटी इन सॉलिड. ये रिगिडिटी को एक्सप्लेन करता है, सॉलिड की रिगिडिटी को. These properties depend upon the nature of constituent particles and the binding forces operating between them. ये constant particles जो bind करते हैं, bind रहते हैं forces को operating between them. The correlation between structure and properties helps in the discovery of new solid. तो इसलिए जो correlation between है structure and properties को वो help करता है discovery में, new solid material की discovery होने के लिए. ये correlation क्या करता है, कोरिलेशन किस चीज़ का है, स्ट्रक्चर का है और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जो कि हेल्प करती हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मेटेरियल विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, कार्बन नैनो ट्यूब आर न्यू मटेरियल दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मेटल इन दैट थ्रो देन स्टील. ओके, जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो एक न्यू मटेरियल है जिसमें पोटेंशियल है देने के लिए मटेरियल को थ्रो टफर देन स्टील. उनमें मतलब देने के लिए प्रोवाइड है मटेरियल को, टफर है बहुत स्टील से ज़्यादा. लाइटर देन एल्युमिनियम हैव मोर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी. लाइटर के पास मोर कंडक्टिविटी है. जब भी तो हम गैस के सामने लाइटर यूज़ कर देते हैं तो वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर देता है, और एल्युमिनियम की कोई चीज़ करेंगे तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकती है. तो ये आप डेली लाइफ में भी इसका बहुत रोल है. आप इसे रटोगे नहीं, अगर हम डेली लाइफ से कोरिलेट करके चलेंगे तो भी हमें ये याद हो जाएगा, है ना. लाइटर देन एल्युमिनियम एंड हैव मोर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी देन कॉपर. सच मटेरियल्स में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी. सम अदर मटेरियल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर का बहुत रोल है फ्यूचर पे. सुपर कंडक्टर्स का भी बहुत रोल है. मैग्नेटिक मटेरियल का भी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का फॉर पैकिंग, बायो कॉम्प्लीमेंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा. Thus the study this state become more important in the present scenario. In the unit we shall discuss different possible arrangement of particles resulting in several types of structure and explore why different arrangements of structural units lend different properties to solids. We will also learn how these properties get modified. We also learn that these units, how these units can be modified. So we can study these units can be modified by reading the structural imperfection or by the presence of impurities in minute amounts. अब हमारा मेन टॉपिक आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था पहला, जो हमें टॉपिक के बारे में जानना था. और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद टॉपिक पे आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. इन क्लास 11th यू हैव लर्न. अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा रही हूँ तो आपको जल्दी जल्दी समझना होगा. इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. तुमने पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स के एग्जिस्ट करती हैं 3 स्टेट्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. everyone is knowing about this solid, liquid and gas under a given set of condition of temperature, pressure. Which of these would be the most stable state? जो प्रेशर होता है वो सबसे स्टेबल स्टेट होता है ऑफ अ
of a given substance depend upon the net effect of two opposing factor। तो बच्चों इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा कंडीशन टेम्परेचर पे, जो कौन सा सेट है जो टेम्परेचर के कंडीशन पे डिपेंड होती है। तो प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंडेंट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है एक इस पे टेम्परेचर। मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेट ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर्स पे। दीज आर, ये कौन कौन से अपोजिंग फैक्टर होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं विच टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स और एटम और आयन्स क्लोजर एंड द थर्मल एनर्जी, और जो कि रखते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स को क्लोजर। आयन्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं और आयन्स होते हैं। तो बच्चों आपने मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, तो आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूल्स एंड आयन में ये डिफरेंट होता है। द मेन थिंग इज, जो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, वाटर का एक पार्ट ले लो, एक पार्ट ले लिए तो वो क्या है? उसका मॉलिक्यूल हो गया। और एटम क्या होता है? एटम मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के जो चीज़ बनती है वो हम मॉलिक्यूलर को, जैसे मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, उनको मिलाएंगे तो वो एक एटम बन जाएगा, है ना। और आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इन आयंस में क्या होता है? कैटायन, एनायन, है ना। कैटायन, एनायन। तो कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, जो कि आपने एक बैटरी पे भी देखा होगा, प्लस और माइनस का। सो क्लोजर एंड द थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच टेंड्स अ कीप अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में द थर्मल एनर्जी इज लो। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है थर्मल एनर्जी। अगर अगर योर इफ़ यू हैव अ लो टेम्परेचर in your surrounding, then thermal energy is also low and intermolecular forces bring them so close that they cling to one another and occupy fixed position. these can still they can still oscillate about their mean position। वो mean position पे oscillate भी होते रहते हैं। and the substance exists in solid state, और किसी भी solid state पे जाके वो रुक जाएंगे, exist हो जाएंगे। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, 5 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, उनमें से आप 3-4 प्रॉपर्टी भी याद करके कर लेंगे। आती हैं प्रॉपर्टीज़ की कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो बहुत ही टाइट पैकिंग पार्ट से होती है, उसमें डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। एटम, मॉलिक्यूल, आयन हैव अ फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिगिड। वो क्या इनकम्प्रेसिबल और रिगिड होती हैं। अब पढ़िए। सो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की होगी। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ मार्वलस डे। So if you enjoyed the video, press the like button, subscribe button and the bell icon. Thank you for watching IC Teaches.